हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम एस त्रिपाठी, टीबीटी मैथ्स इंजीनियरिंग नंबर 2 जेने करेंगे। वंस अगेन आई एम विद यू with our topic inverse trigonometric functions. In our last class, or we can say in our last video, we have discussed inverse trigonometric function, their definitions. We have seen that to define inverse trigonometric functions, we have to restrict the domain and of trigonometric functions, then we define. Okay? Today we discuss some properties of inverse trigonometric functions. In short, I am written in an ITF, inverse trigonometric function. These properties and results which we are going to discuss are true for or are valid for principal value branches of inverse trigonometric functions or the domain or the value of x which are given. Okay. For some value of x, these properties are not, these results are not valid. We are not going, will not go in detail of that. This is out of the scope of this book. The formulae or the properties which we are going to discuss will be used in our exercises when we solve the problems. First, before coming to the property, I would like to recall in the last term for sine inverse x, I have defined sine inverse is a function from minus 1 to 1 to minus pi by 2 to only for sine. I am recalling for sine. Okay. Let us recall this. Sine inverse this. Now, from this we have also learned that sine inverse sine x equals to x. Also sine inverse y और sine inverse x, no problem. यहाँ y भी लिख सकते हैं, sine inverse y equals to y. ये अगर x लिखेंगे तो भी सही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तो if we write sine inverse x equals to x, if we write sine x equals to y, then sine inverse sine y equals to x. What we have written? Sorry, we have sine x equals to y. We are writing sine x equals to y. That is sine y, sine x equals to y, then x equals to sine inverse y. Clear? In place of sine x, we have written y. It means sine inverse y equals to x, and we have written x equals to sine y. So this result is important, and that if sine inverse x equals to sine y, then sine inverse then y equals to x equals to sine y, then y equals to sine inverse x. When we write x equals to sine y, means we are going to define sine inverse function. Then y should belong to minus pi by 2 to pi by 2. Okay. And here x belongs to minus 1 1. तो दिस रिजल्ट इज ट्रू. एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी आप ये दिस सपोज यू थिंक साइन इनवर्स x equals to y, then x equals to sin y. Okay, this is correct. This I have written here. X equals to sin y, then y equals to sin inverse x, then x equals to sin y. This result is correct, but never think, कभी ऐसा मत सोचिए कि sin inverse का मतलब 1 upon sin है. नहीं, कुछ बच्चे अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं कि sin inverse x का मतलब 1 upon sin है, तो 1 upon sin इधर जाके sin y हो गया. ऐसा नहीं है कि sin inverse का मतलब 1 upon sin x हो गया y और sin. तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि sin inverse x और sin inverse x means sin inverse x equals to 1 upon sin x. This is wrong. Okay, actually if we write sin x,
रेज टू दी माइनस वन अगर हम लिखते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि 1/sin x, ओके, विच इज cosec x। लेकिन साइन इनवर्स को 1/sin कभी नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। इसे नोट मैंने लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता है, या खाली साइन इनवर्स का मतलब ही बन। साइन इनवर्स एक फंक्शन है और साइन भी एक फंक्शन है। वो फंक्शन की डेफिनेशन की वजह से रिजल्ट आया है कि इफ x इक्वल्स टू sin y देन y इक्वल्स टू sin इनवर्स x। और ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है। ये cos के लिए भी ट्रू होंगे, tan के लिए भी cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, ओके, tan इनवर्स y इक्वल्स टू y। तो इस रिजल्ट हमेशा ट्रू होंगे, इनको आप याद रखेंगे। और नाउ हम अब आते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के लिए ट्रू है, या जो x की वैल्यू गिवन होगी उनके लिए ट्रू है। हो सकता है x की सारी वैल्यूज के लिए ये वैलिड ना हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे जो हम लिख रहे हैं उनके लिए ट्रू है। कहाँ ये ट्रू नहीं है अगर किसी वैल्यूज के लिए, देन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ओके। तो फिर से मैंने ये बात आपसे कही है, साइन इनवर्स फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला आपके लिए ट्रू है। बुक में देखेंगे, मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी रेंज जब मैं x की वैल्यू लिखूंगा क्या क्या हो सकती है, तो आपको मालूम है कोसेक इनवर्स x किसके लिए डिफाइन होता है, वही चीज है यहाँ, x is less than or equal to -1 and x is greater than or equal to प्लस, ठीक है, या x is और लिखिए, या तो x is less than or equal to -1 है और x is greater than or equal to 1 है। तो ये रिजल्ट आप, ये सही है, लेकिन ये आप जहां भी यूज करेंगे इसको ध्यान रखिए। अगर ये याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, रेंज आपको पता है, लेकिन ये रिजल्ट आपको कैसे यूज करना है इसको हम देखेंगे और प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसी में दूसरा, इसका हम फर्स्ट पर डाल दे रहे हैं, इस सेकंड प्रॉपर्टी सेक इनवर्स को cos इनवर्स से कैसे रिलेट होता है। तो दिस इज cos इनवर्स 1/x, और यहाँ भी सेम चीज है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। थर्ड cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। अब ऐसे ही कुछ फॉर्मूलों में यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है। अगर x तो यही हमारी बुक में फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर जैसा मैंने कहा बहुत सारे उसमें ये भी लिखा है कि हमारी बुक से बाहर की चीजें अगर हम एक्स्ट्रा सोचें, लेकिन मैं आपके लिए लिख दूंगा यहाँ कि अगर x लेस देन 0 होता है तो उस केस में cot इनवर्स x, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अगर x लेस देन 0, x 0 तो होगा ही नहीं, वैसे इसके लिए अगर खाली cot इनवर्स x का डोमेन की बात करें तो आपको पता है रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। खैर तो ये हो गया। अब इनमें से ये प्रॉपर्टी, हम इनमें से एक फॉर्मूला प्रूव कर दे रहे हैं, बाकी सब आप कर लेंगे। कैसे आता है देखिए, कोई सा एक ले ले रहे हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। तो लेट कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x को हम y मान लें, तो x की वैल्यू कोसेक y हो जाएगी। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कोसेक y। हम साइन से रिलेट करना चाहते हैं इसे, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ ये फर्स्ट मान लिए x इक्वेशन को, तो 1/x इक्वल्स टू 1/कोसेक y। 1/कोसेक y क्या होता है, इसको देख के आप साइन y है, साइन में लाना है, तो हमने इसे लिख लिया 1/x
इक्वल्स टू साइन वाई। साइन वाई 1/x है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/x। ये शुरू में डेफिनेशन से पढ़ लिया। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये इक्वेशन 2 देख लीजिए। तो फर्स्ट में था y की वैल्यू कोसेक इनवर्स x और यहां से आ गया y की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो दोनों y की वैल्यू बराबर कर दें। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये जहां दिया हुआ है उसके लिए ट्रू मिलेगा। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए रिजल्ट ट्रू है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी के 3 पार्ट, 2 पार्ट्स और बिल्कुल इसी ढंग से सिंपल तरीके से आपको एक पार्ट और कर लीजिएगा अपने आप। अब हम लिखने जा रहे हैं कुछ और एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी में 6 पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जहां भी आपने पढ़ा है सही है अगर, ठीक है। इसका जो फिर भी हम यहां लिख दे रहे हैं एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स बिलोंग्स टू -1, ये सही। सेकेंड, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है और ये भी एक्स की वैल्यू इसके लिए भी यहां से एक्स की वैल्यू -1 to 1 को बिलोंग करती है और कोसेक के लिए आपको पता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तीसरी वैल्यू आती है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें ये, अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये आपने याद करा है कहीं, अगर ये चीज जरूर ध्यान रखिए, ये कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है कोसेक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉस इनवर्स यहां से चेंज आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स में आएगा माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और x की वैल्यू वही है x बिलोंग्स टू -1, 1। फिफ्थ, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। x बिलोंग्स टू सेम x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। And last, cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि इन सभी फॉर्मूलों में साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस, इन तीन में कुछ अलग है और यहाँ पाई माइनस आ रहा है। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद करते समय एक मैं भी प्रूव करूंगा, इसको प्रूव कर दूंगा, एक इसको प्रूव कर दूंगा कि कहाँ पे तीन फॉर्मूलों में साइन कोसेक और टेन में ऐसा आता है। और आपको याद होगा कि जब हम इसके साइन के डोमेन को लेते थे, याद होगा आपको, साइन इनवर्स डिफाइन करें तो -π/2 से +π/2 लेते थे क्लोज इंटरवल। इसके लिए भी -π/2 से +π/2 लेते थे क्लोज इंटरवल और इसके लिए भी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल लेते थे। इसमें जीरो नहीं आता था, वो अलग है, लेकिन हाँ इसके कोसेक के लिए। तो जबकि इसमें हम 0 से पाई लेते थे, cos इनवर्स x तो 0 से पाई लिया जाता था, sec के लिए भी 0 से पाई और cot के लिए भी 0 से पाई, ठीक है। बीच में एक जगह -0 आता था, लेकिन जो इंटरवल है इसके लिए ऐसा चलता। तो यहाँ पे इस बात से ध्यान रख सकते हैं कि ये पाई माइनस में कौन कौन से हैं, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, क्योंकि ये यूज करना पड़ेगा तो आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ध्यान दीजिए 3 ये और 3 ये, 6 मैंने उसके ऑर्डर नहीं। एक पहला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला प्रूव, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। तो implies that, यह याद हो गया होगा, x equals to sin inverse x को y मानेंगे, implies that x equals to sin y, सॉरी sin inverse minus x है यहाँ, थोड़ी सी sin inverse minus x, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने sin inverse minus x को y लिया है, sin inverse minus x equals to y, ठीक है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स को y लिया है, इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन y, जो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। माइनस एक्स साइन y हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस साइन y। और अब आपको फॉर्मूला पता है, मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए आपको पहले पढ़ाई थी कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन माइनस साइन वाई को यू कैन राइट एज साइन माइनस वाई, आप इसे साइन माइनस वाई लिख सकते हैं, ओके। इसका मतलब हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ओके। इंप्लाइज दैट अगर साइन एक्स साइन माइनस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इन माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू साइन साइन ले लीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपने पहले लिया था, ये sin इनवर्स माइनस एक्स को y माना था, और अब आ गया y की वैल्यू, तो यहाँ ये भी y है और ये भी y है। तो इन दोनों रिजल्ट से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इधर से देखिए, फर्स्ट में आया था sin इनवर्स x माइनस वाई, और यहाँ आ गया y sin फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट प्रूव हो गया, sin इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x, ठीक है। sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। हम एक रिजल्ट ये वाला भी प्रूव कर लेते हैं, कोई सा, और कॉस वाला ले लेते हैं। बहुत तेजी से इसे देखिए, मैं आप समझ रहे होंगे। अब आप समझ, जिसको प्रूव करना होता है उसे हम y ले लेते हैं, और फिर कैसे y की वैल्यू उसके बराबर लाके दिखा देंगे। इसको y सपोज करेंगे और y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगा, लेट, तो आपको मेथड याद होना चाहिए, cos इनवर्स x को क्या ले लेंगे, y, implies that minus x equals to cos y, implies that x equals to माइनस cos y। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह cos माइनस y तो प्लस cos y होता है, तो इसे cos, इसे मैं भी आपने माइनस sin y को sin माइनस y लिख दिया था, यहाँ नहीं लिख सकते आप, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम लिख देंगे x इक्वल्स टू cos पाई माइनस y, क्योंकि ये फॉर्मूला है, cos पाई माइनस y माइनस cos y होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में बताए थे ये रूल कि cos पाई माइनस y इज माइनस cos y, तो इसलिए हमने यहाँ इसकी जगह ये लिख दिया। अब अगर x की वैल्यू cos पाई माइनस y है तो पाई माइनस y कितना हो जाएगा, सही, cos इनवर्स x। तो इंप्लाइज दैट पाई माइनस y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अगर x की वैल्यू cos y है तो पाई माइनस y cos इनवर्स x हो जाएगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू y, ओके। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इसमें y की वैल्यू cos इनवर्स माइनस x आई है और यहाँ पाई वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई एम cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले ड्राइव करके अप्रोच है कि हम इसको y सपोज करते हैं, फिर चेंज करते हैं और फिर दोनों को इक्वल करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इसी तरीके के अप्रोच क्वेश्चंस में भी लेंगे, तो आपको समझ में आएगा। इसको ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी से लिखता हूँ, प्रॉपर्टी थर्ड में
फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और इसके लिए अगर हम लिखेंगे सेम x बिलोंग्स टू -1 to 1, आपको पता है। सेकेंड साइन इन कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x belongs to x is less than or equal to -1 and or x is greater than or equal to +1। ये सब समझाया जा चुका है। थर्ड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। नजर आ रहा है सबको क्लियर? तो देख यहाँ पे क्या होता है, x belongs to r, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके लिए भी है। तो फर्स्ट एक कोई क्या आपकी ये वाला कर देते हैं, चलिए थर्ड वाला एक ही बात है। थर्ड प्रूफ, थर्ड क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई, डायरेक्ट यूज करेंगे बाकी हम फॉर्मूले में से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टी जैसे हम फॉर्मूले कहते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी मान सकते हैं आप, इन्हें डायरेक्ट लगा दिया करेंगे। अभी इनका प्रूफ दे रहे हैं आपको कैसे आया। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, अभी हम क्या कर रहे थे, हम इसको y मान ले रहे थे, यहाँ भी यही करेंगे प्रूफ में। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, इसका प्रूफ है, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू tan y। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे और हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी हमने रिवाइज कराया है कि दिस कैन बी रिटन एज cot पाई बाई 2 माइनस y। क्लियर? लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा और cot पाई बाई 2 माइनस y tan y होता है। इम्प्लाइज दैट x, इसको जब cot पाई बाई 2 माइनस y x है तो पाई बाई 2 माइनस y cot इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। अब y को उधर ले आइए, ठीक है, पाई बाई 2 y को उस साइड ले जाइए, इम्प्लाइज दैट y प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और y किसे माना था, tan इनवर्स x को, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स x, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दिया आपने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है, प्रूफ कैसे इसको अप्लाई करेंगे, एक लाइन में हो जाता है बस क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ तो बहुत इतना स्टेप लेने पड़े आपको प्रूव करने के। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो एक स्टेप में लिख दिया जाता है, उसका आंसर वो मैं बताऊंगा, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर 1 2 3 4 में लिख दे रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। यहाँ पे जो xy है, xy इज लेस देन 1, x और y का, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, और दूसरा फॉर xy इज लेस देन 1, और एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, इसके दो फॉर्मूले मान लीजिए, और ये आ जाएगा xy इज ग्रेटर देन -1, तब ये प्रूफ। तो ये दोनों रिजल्ट हमारी बुक में दिए हुए हैं। एक रिजल्ट और है कि xy अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो मैं लास्ट में उसे लिख दूंगा, पहले से प्रूव कर दे रहा हूँ एक रिजल्ट इसमें से, कि अभी आप ये मान के चलिए, समझिए कि अगर मैं xy लेस देन 1 लेता हूं तभी ये चीज डिफाइंड होगी, ये चीज डिफाइंड होगी, ये वाला सब डिफाइंड होने के लिए, इसे डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, और इस ये आप समझ लीजिए, ठीक है। कुछ बातें मैं अभी जैसे अगर इसे मुझे प्रूव करना है, फर्स्ट का प्रूव कर रहा हूँ, फिर एक और फॉर्मूला आपको लिख दूंगा एडिशनल, जो बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन वो कहाँ लगेगा समझाऊंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लेट
फर्स्ट पार्ट का प्रूव कर रहा हूँ। tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा। तो आप समझते हैं x की वैल्यू अल्फा मान रहे तो x क्या हो सकता है, एंड tan इनवर्स वो लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। जब आप लिख रहे हैं tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा, ओके, दैट इज tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज x इक्वल्स टू tan अल्फा, और इसे माने दैट इज x इक्वल्स टू tan बीटा। ये दोनों आपने सपोज किया। अब अगर हमसे कहा जाए, हमें एक फॉर्मूला पता है, 11th क्लास में पढ़ा था, तो मैंने बार बार आपसे कहा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बिना यहाँ आपको समझ में नहीं, तो सभी को याद होगा 11th क्लास का ये फॉर्मूला tan a प्लस b का मैं आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट को अगर ना याद हो तो इसे नोट करें और याद रखें। ओके, दिख रहा है इधर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला आपको लेके चलना है। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वैल्यू इसको लेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं हम, तो ये आ गया हमारा tan अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, नजर आ रहा है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, x प्लस tan बीटा की वैल्यू है y। यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है बच्चों, सही कर देना। tan इनवर्स y बीटा देन y पर, तो tan बीटा की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस x। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। अगर tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास ये आया है, तो अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स इतना होगा। वहीं पे बात आती है कि जब tan अल्फा प्लस बीटा जो है तो इतना दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ होनी चाहिए। आप tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा अगर tan इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं, तब हमें ये वैल्यू इसकी रेंज में ही मिलनी, इसकी डोमेन और रेंज जो दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए, उसी लिए ये दिया रहता है। तो इससे आप ज़्यादा ना हो, हम यहाँ कर्व से नहीं जाएंगे, उसके लिए इतना समझें कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, इसके आगे लिख दे रहा हूँ इधर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यस इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, और बीटा की जगह tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला प्रूव होगा। ओके, इन अल्फा प्लेस ऑफ अल्फा राइट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर हम x के प्लेस पे माइनस वाई लिख देते हैं, तो हमारी x y की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। ठीक है, y के प्लेस पे माइनस वाई लिखने से यहाँ। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो ये आपका रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। तो दोनों ही रिजल्ट ध्यान रखने, मैंने इसे प्रूव कर दिया, आप भी प्रूव कर लीजिएगा कैसे आता है ये। लास्ट 3 प्रॉपर्टीज है, हम जल्दी से इन्हें लिखेंगे। फिर अगर लास्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट करें। 2 tan इनवर्स x, इसको बोलेंगे सर फिफ्थ आ गया, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स, पहले साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम लिख दें मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन है, तभी ये प्रूव होगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएंगे, साइन इनवर्स ये डिफाइन हो पाएगा और ये डिफाइन हो पाएगा, दोनों के दोनों ही इसके लिए डिफाइन होने चाहिए। सेकंड 2 tan इनवर्स x, एंड दिस इज 2 tan इनवर्स x अगेन, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज, इसके लिए ये रेंज चलेगी। और तीसरा है थर्ड 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1
माइनस, इसमें दोनों में फर्क समझ लीजिए। टू साइन इनवर्स की फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन। इस वजह से ये दोनों फॉर्मूले में कितना फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी दोनों में एक सा लग रहा होगा आपको। तो ये इसके लिए हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं, हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है। हम कौन सा प्रूव करें, दूसरा प्रूव कर दें। चलिए दूसरा वाला प्रूव कर देते। सेकंड 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे implies that let tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, और y मान लीजिए let tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan y। नाउ cos 2y का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद है, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ cos 2 थीटा लिख दूं, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास का याद होना चाहिए, वो यहाँ यूज होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y implies that cos 2y equals to 1 माइनस tan x, tan y क्या लिया आपने, x ले, x की वैल्यू tan y है, तो 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अभी क्लियर हुई बात, तो ये यहाँ सबके समझ में आ गया। इसके आगे आप लिख सकते हैं, अब ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, इसके आगे लिख लीजिएगा हम इसके। तो ये 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y इक्वल्स टू 1 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर होगा ना, cos 2y दिया हुआ है, तो 2y की वैल्यू यहाँ लिख देगा उसे, implies that 2y equals to cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square, ये आ गया, ठीक है। तो अगर आप y की वैल्यू लगा दें, y क्या माना था, tan इनवर्स x, तो रिजल्ट आ जाएगा। y की वैल्यू tan इनवर्स x थी, यहाँ लिख दीजिए, तो प्रूव हो गया। 2 tan इनवर्स x equals to cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस। तो ये प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स, जिनको हम यूज करेंगे। एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैंने इसका प्रूफ समझा दिया आपको। अगर ये x की रेंज नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा है। हमारे बुक में ऐसा है कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, ये फॉर्मूले तभी ट्रू है जब ये चीज होगी। अगर क्वेश्चन में आएगा ये प्रूव करो, इसका मतलब ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए दिया हुआ है और ये ट्रू है। एक केस ऐसा है जो मैंने कहा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला बदल जाता है, थोड़ा सा उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम अपनी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें हम कैसे देखें, कैसे लिखेंगे। इतने फॉर्मूले प्रूव करने के बाद हमें ये समझ में आ गया होगा कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं इनवर्स के क्वेश्चंस करने में, जो हमें पता है। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 सबने कर लिया, मैंने कुछ बच्चों ने मुझे करके भेज दी है पूरी एक्सरसाइज। कहीं कहीं एक आदमी गलती करी है, वो मैं अभी मुझे जो एक मिस्टेक मिली थी वो मैं पहले वही बता दूं। एक क्वेश्चन था जो बच्चों स्टूडेंट ने गलत किया था, tan इनवर्स -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 में स्टूडेंट्स ने इसे लिख दिया tan इनवर्स, वो इसलिए गलती हुई कि आपने डोमेन और रेंज पर पे ध्यान नहीं दिया, प्रिंसिपल ब्रांच पे ध्यान नहीं दिया। tan इनवर्स बच्चों ने इसे 3π/4 लिख दिया, या किसी ने -3 और फिर लिख दिया tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल्स टू 3π/4। तो मैंने कहा था ये गलत होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई से ऊपर नहीं है,
माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में हमें सोचना पड़ता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ ये रॉन्ग है। चेक करिएगा जिन्होंने किया, तो बच्चों ने मुझे वर्क भेजा, मैंने नोट किया था। तो इसे लिखने के लिए उन्हें लिखना चाहिए tan इनवर्स आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके हिसाब से आपको ये थिंक करना है कि किस वैल्यू के लिए tan है, लेकिन साथ वो वैल्यू किसमें लाई करनी चाहिए, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, फोर्थ में होगा ये, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा tan माइनस पाई बाई फोर। ओके, और अब आप ये फॉर्मूला, सही ये लग रहा है देखने में आपका, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था ये गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। ओके, दिस इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये निकल के आ रही है माइनस पाई बाई फोर। तो tan इनवर्स माइनस वन के लिए मैंने कराया भी था, लेकिन कुछ तो इसे नोट कर लीजिएगा जिन्होंने मिस्टेक की है। एक क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2.2 का। अगली बार हमें खाली एक्सरसाइज करने, फॉर्मूले हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब 2-3 दिन हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे। विल सॉल्व ओनली प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कर दे रहा हूं, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो लेट sin इनवर्स x equals to y implies that x equals to sin y। ओके, इतना सपोज कर लिया। राइट हैंड साइड इसकी एक, मैंने कहा आपसे, इसके लिए जो बुक में क्वेश्चन है इसमें एक चीज दी रहती है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू हाफ। आप ऐसा मत सोचिए, ये समझिए कि फॉर्मूला ये चीज इसलिए दी, जैसे कहीं पे लिखा रहता है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 fx और फिर लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, तो 2 को छोड़ के बाकी सब जगह सही है। तो ऐसे ही ये जो रिजल्ट है इस रेंज में, इसमें इसके लिए ट्रू है। अगर ये इसके बाहर होगा तो रिजल्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से सही नहीं हो सकता है। तो ये चीज अगर दी हुई है तो आपको, हमारे बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, आपको इससे बहुत ज्यादा परेशानी, ये समझ लीजिए कि तभी ये सही है, और बाकी करने का तरीका ये है। तो ये इसलिए हम इस ढंग से करेंगे। राइट हैंड साइड आ जाएगा साइन इनवर्स, हम उससे भी सोच सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। अगर हम सोचे वो क्यों दिया हुआ है, उसके भी लॉजिक है पीछे। इसी क्वेश्चन में मैं समझा भी दूंगा अगर स्टूडेंट चाहेंगे कैसे हो जाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक में लिखा दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, तो आपको वो समझाने की जरूरत नहीं। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, उसको करके किया कि ये कैसे उस रेंज में आएगा, 3y कैसे उसके अंदर ही आएगा, तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 x की जगह पे साइन y पुट कर देंगे, 3 sin y माइनस 4 sin क्यूब y। ठीक है, साइन इनवर्स x को y माना तो x sin y हो गया। अब आप अगर देखें तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, आप 11th में पढ़ते थे, sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x। फिर मैंने कहा आपसे, अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मेरा कहना मान के आप लोगों ने एक जगह लिख लिए सब जगह, वो सारे फॉर्मूले लिख लीजिए नहीं, और याद रख लीजिए अगर बहुत दिन से भूल गए। sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x, वैसे मैं लिखता चलूंगा साथ में, लेकिन यहाँ लिखा फिर भूल जाएंगे। तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इस वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, sin 3y हो गई। साइन इनवर्स sin 3y, ओके, साइन इनवर्स sin 3y की वैल्यू आ गई है। implies that sin इनवर्स sin 3y is equal to 3y। पता है आपको। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट, अगर sin इनवर्स sin 3y लिख रहे हैं, इसका मतलब 3y की वैल्यू जो है इसमें लाई करनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करनी चाहिए 3y की। ठीक है, तो ये हो गया 3 sin इनवर्स 3y इक्वल्स टू 3y, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 sin इनवर्स x, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है।
एक बच्चे ने मुझे विशेष ने साइंस से प्रूव किया था। हमें बिल्कुल कुछ और नहीं करना, सिंपल लेट साइन इनवर्स एक्स वाई, एक्स की वैल्यू साइन वाई, अच्छा किया था। ऐसे ही साइन इनवर्स ये आ गया, फिर ये हो गया और इससे कंप्लीट। इतने स्टेप्स में क्वेश्चन पूरा हो जाए। अगर ये आपको फॉर्मूला मालूम है तो, मैंने तो आप नहीं भी लिखेंगे तो ये लग रहा है कि आपको पता है इसलिए आपने लिखा। तो ये फॉर इसी तरीके से अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करेंगे। एक क्वेश्चन में जल्दी से, कितने आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा। जल्दी से इसे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स हाफ। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70। तो देखिए 2 tan इनवर्स हाफ लिखा हुआ है। ओके, अब हम इसको, ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स हाफ इक्वल प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला याद है आपको? मैं इधर लिखता हूँ 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। तो अगर आपको याद, मैंने कहा ध्यान है बहुत अच्छा, वो यहाँ को खाली वेरीफाई हो रहा है। तो उस जगह यहाँ लिखा हुआ था कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो ये देखिए यही आएगा, हाफ इसके बीच में आ रहा है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा वो उसी रेंज में मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये मुझे पता नहीं है कि, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको खाली अगर इतना भी याद है तो आप इसे लगा दीजिए, उस -1 और 1 के बीच में पढ़ना चाहिए, वो यहाँ पढ़ रहा है। हाँ, तो वो जो उसकी रेंज है सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपका इसका, प्लस tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स, ये देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और अब आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके, तो ये जब आप ऊपर लिखेंगे आ जाएगा tan इनवर्स 31/21, और जब इसे सॉल्व करेंगे 4/3 है यहाँ, 4/3 इंटू 1/7, तो 4/21 आएगा, 17/21 और सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा tan इनवर्स, इधर tan इनवर्स 31/17 राइट हैंड साइड। प्रूव। तो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग अब क्वेश्चन बहुत तेजी से होंगे, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, वही जो अब हम कर चुके हैं। हमें अब कोई नया बहुत कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, जो कुछ बीच में कुछ और एडिशनल फॉर्मूले आएंगे हम लिख देंगे। तो ये आज के लिए है। आप लोग आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सबको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कुछ मैंने प्रूव कर दिए एक सब में, और बचा हुआ एक पार्ट आप प्रूव कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 में भी कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं जो 2.1 के कॉन्सेप्ट पे या शुरू के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसे कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, और एक हमसे आप लोग जो बहुत से स्टूडेंट्स बाहर के भी हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया, क्वेश्चन पूछा था, मैं इस समय नहीं ले पाया, टाइम ज़्यादा हो गया है, कि व्हाट इज एक्सेंट्रिक एंगल। तो आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टर्न व्हाट इज एक्सेंट्रिक एंगल। थोड़ा टाइम चाहिए, ओवर हो रहा है टाइम, 45 मिनट से ज़्यादा हो गए। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अंकित जी की बात का आंसर भी मैं ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।